ब्रीदिंग इन ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का आदान करने के लिए। आइए तैयार हो जाते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में रखें। Join your both palms together. Inhaling. Let us get ready to start with the prayer. Om. 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। योगेन चित्तस्य परेण वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ ॐ कुछ पल मौन प्रार्थना के भाव को मन मस्तिष्क में उतरने देते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि सुबह सवेरे उठने के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाता है। आइए इस शरीर को और ज्यादा सक्रिय करते हैं। मनस, बुद्धि और शरीर तीनों को एकात्म भाव से योग से जोड़ते हैं। I would request everyone to rub your both palms together, placing them over the eyes, cupping them over the eyes. You may slowly open. Okay. Good morning. Namaste. Once again, Suprabhatam. So today being the first day, let me have a just a minute. I'll ask everyone to mute for now. मुझसे आवाज आ रही है। No sound. Sound. Yes, even I got muted. Okay, so
Done. So it is said योग is consisted of 8 important limbs. है ना, महर्षि पतंजलि ने 8 अंगों का जिक्र किया. But these 8 important limbs were not universally accepted by everyone. They were somehow just a minute, Praveen. They were somehow being considered as depending on your need. They were being classified. You can choose the limbs as per your requirement. So yeah, there were several rishis who considered Saptang Yoga, who considered Shadang Yoga. Shadang stands for 6 limbs. Saptang stands for 7 limbs. There is Chaturanga Yoga also, which considers 4 limbs. Right? Among all of these, महर्षि हेरण जी ने सप्तांग योग का जिक्र किया. सप्तांग योग में उन्होंने जो फर्स्ट पार्ट है वह है षटकर्म. फर्स्ट पार्ट षटकर्मणा शोधनम चैव स्थैर्यम धैर्यम लाघवम. तो षटकर्म से एक शोधन क्रिया की शुरुआत होती है और षटकर्मों में भी सबसे पहले नीति का जिक्र आता है. Okay, so Neti is one particular technique which can help one feel cleansed within from the shoulder. Chaturtva bhag jo rogogham Neti आशु निहंती च. जत्रु माने शोल्डर का जो ये ब्यूटी बोन जिसको हम कहते हैं क्लेविकल, है ना, जत्रु के ऊपर के भाग के लिए सर्वोत्तम माना है नीति. But this नीति cannot be considered as a standalone practice. मतलब उसके साथ you have to involve the other parts जैसे आसन हो गए, प्राणायाम हो गया, and also to some extent ध्यान, which makes it a complete package. Okay, तो आने वाले 30 दिनों में हम यही प्रयास करेंगे that we would be considering this as a complete package. I am requesting you, please abide by this very sincerely. आज जो आप आए हो बहुत बढ़िया, कल भी आपने लाइव जुड़ना है, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, but it is deeply requested, please attend live because these practices are to be practiced in under a guidance. तो मैं यहाँ पे आपको देखूंगी भी प्रैक्टिस के दरम्यान. I have another screen with me, so during every of your postures I will be checking you as well. ठीक है? So we'll start. तो सबसे पहले शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायामों से. सभी से अनुरोध है कि आइए हम शुरू करते हैं. आज हम नीति क्रिया नहीं करेंगे बिकॉज आई जस्ट वांट टू गेट यू द प्रीरेक्विजिट्स क्लियर. तो आज हम सूक्ष्म व्यायाम और नीति के लिए क्या जरूरी है उन सभी प्रैक्टिसेस को करेंगे. सो यूज योर शोल्डर्स टू रोल फॉर नाउ in order to ensure that we have a very great experience of Neti. It is important to have our nasal passage clear, right? So to make the nasal passage clear, it is important to also have its associated parts clear, toxic free, morbid free, right? So firstly, we will make the welcoming practice for the parts to get cleared. एक प्रकार से हम शरीर के भागों को सिग्नल दे रहे हैं कि अब कुछ नया होने वाला है. तो इसीलिए सूक्ष्म व्यायामों से शुरू करते हैं. रोल योर शोल्डर्स, स्कंद चक्र. नाउ फ्रॉम बैक टू फ्रंट, move your shoulders from back to front. Consider that these are the pens and you are making a circles out of them. Consider making it. आंखें बंद, पूर्ण ध्यान अपने कंधों पर. हमारे कंधे कहीं ना कहीं ball and socket joints से प्रभावित हैं. They are actually a ball and socket joint. So when we are moving them, consider that there is a ball and there is a socket. And hereby we are allowing movement to happen for the prana to flow around those parts. Continue making it. पूर्ण एकाग्रता पूर्वक. ग्रेट. दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए सिर के ऊपर रखें. Open them to the ceiling and now raise it up. Lengthen and raise it up. Turn to your left side. Come back to center. Turn to your right.
Come back to center. Again, now this time turn, but place your left hand on the ground and turn nicely to make the elbow on the ground. Turn to ensure that side part of the waist to move laterally towards left. Hold the position. इस अभ्यास में हम अपने शरीर के स्पाइन के कमर के लैटरल पोर्शन पे काम कर रहे हैं. Come back to center. Exhale towards your right. Place your right elbow on the ground. Hold the position. Be aware of your left side of the spine. Be aware of your left side of the waist. आंखें पूर्ण बंद. And release. Now turn your spine to make your right hand onto the left knee and left hand coming in front. Twist to look behind. पीछे देखने का प्रयास. Come back to center. Now turn to look to the other side. यहाँ पे हमारी कमर ही नहीं बल्कि अपनी गर्दन तक में मूवमेंट अनुभव होना चाहिए. Come back to center. Again, turn to your left side. Bring your left palm in front. Come back to center. Inhale and exhale, turn towards your right. Look behind. Come back to center. Now let us have a rotation of the neck. But firstly, turn your neck inward. जिनको vertigo के symptoms होते हैं, फिर cervical, they are not supposed to droop too much down. गर्दन में दबाव आ सकता है. बाकी जिनकी गर्दन स्वस्थ है, they may try to make your throat touch to the कंठकूट. जो यहाँ पे throat pit है ना, वहां पे. Exhale to get it down. Inhale, come up, look above. Exhale, down. Inhale, look above. Exhale, down. Inhale, look above. And come back to center. Is my voice, just a pointer, is my voice breaking? No. No, right? Okay, okay. तो हेमिशा जी एक बार आप चेक कर लीजिएगा अपना इंटरनेट. ठीक है? Continue. Now turn your neck towards your left side. Center में देखिए. Towards your right. So here we are working on our sternocleidomastoid muscle, SCM. It is important to involve each and every part of our shoulder properly. Turn towards your left again. Come back to center. Towards your right. Center. Towards your left. Center. And now turn your neck towards the left, but ear trying to touch the shoulder. Let not the shoulder come up. मतलब अपने कंधे को ऊपर नहीं लाना है. Let us just try जितना हमारी क्षमता है, जितनी क्षमता है, गर्दन को बाईं ओर लगाने का प्रयास. Come back to center. Turn towards your right. Center. Left. आंखें बंद. Center and right. ग्रीवा शक्ति संचालन के 4 अभ्यासों के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में. For that, I would want you to use your both legs to be open. दोनों पैरों को खोलेंगे. Open your legs. ठीक है? ना जहां पे भी आप जितना आपकी खोलने की क्षमता है, दोनों हाथ पीछे रख. Place your hands behind. Make your spine elongate. Move bend your toes inward. अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर रखें and open. Contract, open. Contract, open. इस अभ्यास में हम अपने पंजों में एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करते हैं. आंखें बंद. पूर्ण ध्यान अपने पैरों के पंजों की उन नस नाड़ियों. It is said that the body's correspondence points are associated and located at our palms and feet.
So continue making the full awareness to contract them, relax. So basically हमारे पैरों के पंजे एंड हथेलियों के पंजे, इनमें से जो टिप पॉइंट्स है ना, वहां पे साइनस पॉइंट्स कहा गया है. So there are sinus points associated. Similarly at our tips of the toes. तो जब हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हमारा ये भाव रहे कि उन जगहों पे हम एक प्रकार से emergency mode ला. Then we release. Again contract. Continue contracting. Let the blood be concentrated at some point to some extent and open. We'll hold the position for some time. इस position में आंखें बंद रखें and contract your toes. Open. Again contract. Now time for the sole of the foot. दोनों पैरों के पंजों को flex, dorsiflexion करें. Sorry, plantar flexion. Allow your soles of the feet to contract. Contract it nicely, vigorously. कभी मैं दिखाऊंगी हमारे पैर के पंजे में पूरे शरीर के इंपॉर्टेंट अवयवों का होल्डिंग है, अवयवों का पोजिशनिंग है. सो कॉन्ट्रैक्ट इट, ओपन. अगेन कॉन्ट्रैक्ट, ओपन. Contract, open. Contract. Now rotate. Time to rotate. Continue rotating. Continue rotating. Other way around. Continue. करते रहे. हमारा प्रयास हो कि अपने दोनों घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रहे. We are allowing our knees to be straight, tighten, while we are focusing on our ankles right now. अपने पैर की ankle position पर ध्यान देते हुए continue making a rotation. Other way around. 10. आंखें बंद. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Great. Relax. हल्का फुल्का मूव करने के बाद अपने पैरों के पंजों को एक साथ लाएं. Join your soles together. दोनों हाथों को इंटरलॉक करें. कमर को सीधा रखें. Spine elongated. Arms in such a way that we are fully in a complete straight aligned position. I would request you to have your legs to move up and down in the तितली आसना. इस अभ्यास के दरमियान हमारा ये प्रयास हो कि अपनी पैर की पिंडलियों का पोर्शन जमीन पर आ जाए. Try making your calf muscles to come down and up. श्वासों के साथ माने लंबा गहरा श्वास भरे एंड कंटिन्यू करते रहे. थोड़ा बहुत अगर हमारा नहीं लग रहा, जैसे मान लीजिए आपके पंख ऊपर ही उड़ रहे हैं, है ना, इस पोजीशन में अगर आप हो, तो क्या करना है? देयर इज अ ट्रिक टू डू. सो मेक योर स्पाइन इरेक्ट एंड ट्राई डूइंग अ बिट ऑफ, खुद से प्रयास करें. अगर कोई और आके आपको फोर्सफुली मूव करेगा, देन दैट कैन कॉज इंजुरी. बट व्हेन यू डू इट बाय योरसेल्फ, you can know where you can stop. So अपनी क्षमता अनुसार कल से बेहतर करने का प्रयास करना है. एक दिन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है और ना ही ऐसा कोई फिक्स रूल है कि 100 दिन में आ जाएगी. इट इज अ जर्नी. everyone's having its own pace. So let us be optimistic and चरे वेती के भाव से कंटिन्यू करें. क्या पता कौन से दिन आपको महसूस हो कि yes, my body is responding very actively with me. और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा ना दोस्तों, you will find so many important changes happening. Great. Now let us turn the knees to one side. बाई करवट लेते हुए पीछे देखेंगे. Come forward to turn to the other direction.
वापस आएंगे, turn again, come back to center and again turn. हर अभ्यास श्वास प्रश्वास के तादात्म्य से हो, माने whenever you come back to center, breathe, and when you twist, exhale. So synchronize the breathing pattern with the process. Continue again. And now let us get ready to come into the position of tabletop. मार्जरी आसन में आएंगे, अपने दोनों पैरों के पंजे बिल्कुल आरामदायक स्थिति में. Your both the palms just in line with the shoulders. Let us get ready to move the hips upward, spine coming down, shoulders turning up, and the neck turning up. Arch. Exhale as you contract your anal portion. अपने गुदाद्वार के भाग में आकुंचन पैदा करते हुए, पेट को अंदर की ओर सिकोड़ते हुए और गर्दन की कंठकूप को भी सिकोड़ते हुए, माने 3 points, एनल, नेवल एंड थ्रोट, इन तीनों में लॉक जैसा अनुभव करना है. लॉकिंग सिस्टम एक्टिवेट करनी. कॉन्ट्रैक्ट इट एंड रिलीज. अगेन कॉन्ट्रैक्ट, त्रिबंध लगेगा. Contract it and relax. These 3 practices are the essential for helping us experience Shatkarmas even more better. So continue. हालांकि षटकर्म का हम एक आयाम समझने वाले, बट उस एक में भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट गूढ़ रहस्य छिपे हैं. कहा गया है, नासा ही शीर्षोद्वारम, तो नासिका के माध्यम से हम अपने मन मस्तिष्क के पटल को स्टिमुलेट कर सकते हैं. Continue exhaling. Inhaling as you look above. Exhale in. Inhale, look above. Exhale in. Time to come in the Parvatasana. Let me take this point very clear. अगर मान लीजिए आपको कोई स्पाइन से संबंधित स्लिप डिस्क की समस्या रही थी या फिर डिस्क बल्ज, बी केयरफुल, see yourself, understand yourself and then go for the practice. पर्वतासन में क्योंकि कमर खींचती है, तो अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा खुद को समझ के करना. ओके, सो जो भी स्वस्थ है और जो स्वस्थ बनना चाहते हैं, सभी पर्वतासन में आने के बाद लेट अस हैव अ पेडलिंग. कंटिन्यू पेडलिंग. 1 2 3 4 5. Try making your heels to come to the ground. Continue. Continue. Continue allowing your heels to come to the ground alternatively. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Relax. Drop your knees down. Exhale down in Shashankasana. Now when in Shashankasana, ensure to make your hips to come to the heel properly. इस अभ्यास में अपने कूल्हों को टखनों से सटाने का प्रयास करें. Slowly come up to be in Vajrasana. जिन्हें वज्रासन में बैठने में मुश्किल होती है, दे में एक बार आप खुद से ट्राई कर लेना to use the cushion and sit. Let me explain how do we do that. अगर मान लीजिए आपके पास एक सॉफ्ट कुशन है, then use it under your hip so as to make sure that your heels are less affected. मतलब बहुत ज्यादा शरीर का भार उस पर डायरेक्ट ना पड़े, इसलिए आप कुशन से कुशनिंग दे सकते हो उस जगह. दिस इज वन स्टेप. सेकेंडली, आप चाहे तो यहाँ पे
योगा ब्लॉक्स रखते हुए, इन दो भागों में योगा ब्लॉक्स रखते भी कंफर्ट महसूस कर सकते हैं. Ensure to allow your spine to be erect. कुछ पल शांत अवस्था में सांसें भरते हैं. Continue breathing. Allow your eyes to be fully closed, being completely aware of the breathing pattern of the body. Many a times, when we pause and understand our breath, we are thereby able to experience the bliss within, thereby understanding our pattern of thinking process. It is said, Chale vate chalam chittam nishchale nishchalam bhavi. Yogi sthanutvam tato vayum nirodhani. Pattern of thinking is very much influenced by pattern of breathing. The more controlled our breathing is, the better is our thinking pattern, and thereby it is said, we need to control the breath. That's all is required. Everything gets sorted out with that. So, requesting everyone to open your eyes for now, and let us get ready to come into the Dandasana first. Okay? दंडासन की स्थिति में आएंगे सभी. दंडासन की स्थिति में आने के बाद दोनों हथेलियां पीछे की ओर. Make your both palms to touch the ground. कमर को सीधा करें. Make your spine erect. Shoulders rolled behind. Okay, जो अपने कंधे हैं ना वो पीछे की तरफ रोल कर. Yes, roll the shoulders behind. And now let us get ready to allow our hips to move up in the Setu Asana. श्वास भरते हुए हम ऊपर की ओर तानेंगे अपने. ठीक है? This can be done by pretty much everyone, but just a small disclaimer I want to mention. जो महिलाएं मासिक धर्म के दौरान गुजर रही होंगी, रजस्वला का जो टाइम रहेगा पीरियड्स मेंसेस के दरमियान, तो अपने पेट की मांसपेशियों को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना. बी इजी विथ योर प्रोसेस. सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद आप अपनी प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं. Okay, I did not tell this every now and then. Just on the first day, I'm making this point very clear. अपना विवेक यूज करते हुए प्रैक्टिस को धीमी मोड में करोगे तो सारे कर पाओगे आप. ठीक है? तो श्वास भरते हैं. Allow your soles of the feet to come to the ground. Move your spine upward to allow your hip portion to move up. Look above. नजर ऊपर. Hold the position aligned. Slowly come. This is to ensure that our body's arms take up the load. Our legs feel controlled. Shoulders moving behind. Let us allow our abdomen to once again lift up. इस बार मैं देखूंगी कि आप कैसे कर रहे हो. करेंगे सभी. श्वास भरते हुए. Arch above. Lift. One, two, three, four. घुटने सीधे. प्रयास करें कि आपके घुटने सीधे. 5, 6, 7. पारुल जी करिए. 8, 9, 10 and release. Okay. एक छोटा सा पॉइंट. निराली जी, is my voice breaking? If yes, then give a thumbs up. Is it breaking? Or if it's okay, is it breaking? थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है. थोड़ा थोड़ा. Is it okay? Okay, let me do this fix. Give me a moment. चेंज करती हूँ. मैम इट्स क्लियर. इट्स क्लियर मैम. It's clear? Okay. कोई कह रहा है कि क्लियर है. कोई Ma'am, now it is clear. It's clear now. Okay. Yes.
ओके, तो अगर डिस्टर्ब हो जाता है जस्ट इन केस प्लीज लेट मी नो, क्योंकि देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट। कर Sure, सकते ma'am. थैंक यू। सो रिपीट करेंगे पर थोड़ा सा साइड वर्ड प्रैक्टिस से करते हैं। So let us now turn to the left side, बाईं ओर जाते हैं। Make your hip to turn to the left। जिसे अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड में sciatica पेन है तो ध्यान से करना है ना, हर प्रैक्टिस को माइंडफुली करना है। Let us get ready to move by balancing our body on the left palm। अगर जिसे इंजरी है लेफ्ट साइड में तो you may avoid it, okay? So let us get ready to balance our body on the left side of the portion, looking above at the middle finger. Hold 1, 2, 3, 4, and 5. Drop down. Relax. Turn towards your right side. Okay. Let us lift again and hold 1, 2, 3, 4, and 5. Drop. Relax. Coming the Sukhasana. दोनों हाथों को सामने करेंगे। मेक योर फीस्ट, हाथों के अंगूठे को अंदर रखते हुए हाथ की मुट्ठी बनाए एंड कंटिन्यू मेकिंग अ रोटेशन। कंटिन्यू मेकिंग रोटेशन, wrist rotation, मणिबंध चक्र क्रिया। कंटिन्यू। देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट नर्व्स जो हमारी इस कलाई से गुजरते हैं, तो इन कलाइयों को जब हम सक्रिय करते हैं, we feel that the whole of the arm gets the utmost needed attention because of the blood circulation improved over that area. Okay, continue. जब हम हथेलियों की कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट्स की बात करते हैं, तो अगर उन जगहों पर ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना बने तो हम कहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, राइट? सो इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक आवर palms feel more energized with the certain practices which are subtler in nature but having that deeper impact. Great, relax. Now use your attention to be brought at your both of the elbows. दोनों elbows को खींचे अच्छे से। Relax. Flex it inward. Again inhale, elbows को खींचे, stretch and relax. Again stretch and relax. Stretch again and drop. Let us get ready to move to the next part of the practice, which is pranayam. तो प्राण को आयाम देते हैं। हमने in the yesterday's note I had mentioned the importance of asana, or why is asana not really a first practice. हठयोग प्रतिपिका में वो श्लोक है जो मैंने मेंशन किया था, हठस्य प्रथमांगत्वादासनम पूर्वमुच्यते स्थैर्यम धैर्यम चांगलागरम। तो शरीर में स्थिरता, धीरता और लाघवता मिलती। बट इस अभ्यास में भी हमारे स्वात्माराम जी कहते हैं नाड़ी शोधन प्रक्रिया पहले करनी चाहिए, जिसे भी कफ संबंधी प्रॉब्लम। ओके, तो कफ संबंधी इश्यू है, शरीर में ज्यादा बलगम जमता है, मेद धातु का अधिपत्य है, then it is recommended to do the practice of नाड़ी शोधन। नाड़ियों का क्लेंस्ड होना बहुत जरूरी। और नाड़ी शोधन प्रक्रिया को और अच्छे से बूस्ट मिलता है जब हम नीति क्रिया करते हैं। ओके, सो नीति क्रिया का जिक्र उससे भी पहले आता है, because here it mentions that the neti helps to cleanse our nadis channels. Okay, तो हम फिलहाल करेंगे नाड़ी शोधन प्रक्रिया का पहला चरण, जिसमें अनुनासिका क्रिया आएगी। So here we are using our one nostril. Okay, just see, पहले एक बार चेक कर लो आपकी कौन सी नासिका अच्छे से खुली है। तो वो चेक करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, यूज अ पेज, या तो आप अगर आपके पास पेज ना हो तो बिना पेज के ही कर लो। अगर आपके पास मान लीजिए पेज हो, चेक कौन सा भाग में
आपको मूवमेंट महसूस होती है। सो व्हेन यू एक्सहेल द एयर, सटलर तौर पे अगर आप देखोगे तो या तो बाईं या फिर दाईं, दोनों में से एक नासिका एक्टिवेटेड रहती है, ज्यादा एक्टिवेटेड। इस अभ्यास को आप हाथ के मदद से भी कर सकते। फॉर नाउ लेट अस यूज आवर लेफ्ट नोस्ट्रल, जो भी आपकी खुली हो अच्छे से, वट एवर इट इज, वी आर गोइंग टू यूज आवर लेफ्ट नोस्ट्रल। ठीक है, तो कैसे करेंगे अभ्यास को? हाथों की मुट्ठी बनाए पहले तो एक थम्स अप पोजिशन में। मेक योर राइट हैंड इन द थम्स अप पोजिशन, क्लोज योर राइट nostril, inhale fully through your left. Anybody having the left nose blocked, please let me know. आप मैसेज में बता दीजिएगा अगर आपकी बाईं नासिका बंद है। बाकी सभी मेरे साथ बाईं नासिका से श्वास भरेंगे। बिल्कुल धीमा धीमा, आराम से, पूरा पूर्ण श्वास। भरने के बाद कुछ देर होल्ड कर, अंतः कुंभ, and then in the fourth step, let's exhale. The fourth exhalation will be long and will in turn be completely evacuating the air. So let me demonstrate with the positions. हमने बाईं नासिका से श्वास पूरा भरना है और उसके बाद 4 चरणों में प्रश्वास करना है। So 1, 2, 3 and 4. The fourth one will be long one. Okay? तो चौथा पार्ट, चौथा एक्सलेशन हमारा लंबा रहेगा। ठीक, चलिए करते हैं। श्वास भरेंगे गहरा। कोई डाउट है, प्रश्न है, आप मैसेज पे लिख दीजिएगा। आई विल चेक इट लॉन्ग। ठीक है, आई विल रिपीट इट, नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट इट। मैं रिपीट करती हूँ। तो बाईं नासिका से पहले तो दाईं नासिका क्लोज करो। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट, पूरा, जब तक कि आपको लगे कि आपके फेफड़े फट ना जाए, मतलब कि, और फटेंगे भी नहीं, डोंट वरी, इट इज जस्ट दैट यू शुड बी फिलिंग योर चेस्ट फुल्ली। ओके, जितना आपकी क्षमता है पूरा भरे। और उसके बाद what is an indication that your chest has been fully filled? You have to get your neck to go behind, and then once you feel कि इससे और नहीं भरा जा सकता हवा, hold करें, hold it for some time. So for instance we can hold for 4 seconds, 4 सेकंड तक हमने होल्ड करना है ना। जैसे मान लीजिए you've just brought that state of statue position, and then after that exhale in the 4 steps, 4 चरणों में प्रश्वास करें। So the first step is here, यहीं पे एक बार एक्सलेशन, कपालभाति का जैसा हमारा अभ्यास होता है उसी प्रकार एक बार एक्सलेशन, 1, 2, और यहाँ पे गर्दन में मूवमेंट आएगी। जैसे हमने लेते समय वी मूव्ड आवर नेक, एक्सलेशन के दरमियान गर्दन में वापस से टर्निंग आएगी। सो द नेक विल टर्न डाउन, टर्न, कम बैक टू सेंटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, fourth one will be very long and exhaling completely, finally come back to normal position. Clear है मनीष जी? So I think it's clear. Let me redo it. Let's start. Inhale.
भरे अब हम श्वास भरकर 4 सेकेंड होल्डिंग भी करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स। ओके, पूर्ण शांति अनुभूति, एकदम प्रशांत अनुभूति। हल्का हल्का बाईं नासिका से नॉर्मल श्वास लेने का प्रयास करें। सी टू ब्रीथ, चेक टू ब्रीथ थ्रू योर लेफ्ट। दोस्तों, हमारे शरीर की खासियत यह है कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, may it be with respect to the breathing pattern or anything got to do with the mood swings also for that matter. तो यहाँ पे जब हमने पूर्ण बाईं नासिका पर ध्यान केंद्रित किया था, you may find that our left nostril has become more सक्रिय right now. स्वर योग का विज्ञान इतना विख्यात है, अपने आप में गूढ़ है, that it is having its potential to influence our bodily activity by mere activation of required swara as per our need. We can influence it, thereby influencing our bodily tendencies. Let us now use the right nostril. Close your left one with the thumb. बाईं नासिका को बंद करेंगे. Inhale through your right. पूरा भरे श्वास. पूरा श्वास भरे. Continue inhaling. Hold. 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 And slowly exhale at the 4 counts. Completely exhale. फिर से एक बार श्वास भरते हैं दाहिनी नासिका से. पूर्ण ध्यान अपने दाहिनी नासिका पर कीजिए. Inhale through your right nostril. एक बार फिर से श्वास भरते हैं और इस पर होल्ड करेंगे. Inhale. Our right nostril is a representative of sun's energy. Let us hold the air inside it for some time. आप अनुभव करोगे कि अंदर गर्माहट पैदा हो रही है, ऊर्जा का संचार हो रहा है.
exhale. Completely exhale. Okay, great. For now, I would want you to do this for the last round. Inhale through your right nostril. Completely exhale. Inhale again. Hold. Exhaling with the same nostril. Yes. Okay. Hold. And exhale. Complete exhalation. With this, I would want you to now allow your eyes to be fully immersed in this eyebrow center point. अपने ध्यान को eyebrow center point पर केंद्रित करें. दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में रखें. Join your both palms together. आंखें पूर्ण बंद. एकाग्रता पूर्ण मन मस्तिष्क के आज्य चक्र. Inhale. हम सभी उस दिव्य तरंगों में प्रवाहित हो रहे हैं जिससे यह पूर्ण सृष्टि का निर्माण है. Our body is nothing but pulsating energy of this electromagnetic wave, and every one of us is having its own electromagnetic wave around, which we call it as aura. हम सभी का आभा मंडल अलग अलग हो सकता है, पर इस आभा मंडल का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव होता है. प्राणायाम के माध्यम से हम अपने प्राणमय कोश को, अन्नमय कोश को सक्रिय कर सकते हैं. श्वास भरेंगे गहरा, पूर्ण, दीर्घ, लंबा. और आइए कृतज्ञता की भावना और आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से अपने साथ साथ अपने स्वजनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सदिच्छा करते हैं. मेरे साथ साथ आप दोहरा सकते हैं या फिर मन ही मन उन कुछ शब्दों के ऊपर चिंतन कर सकते हैं. हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मन में निरंतर रहने दे. हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षा कर, और तेरा मीठा नाम मन में निरंतर रहने दे. हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको
सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मन में निरंतर रहने दे। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका जिक्र आता है कि अकर्मण्यता हमारा स्वभाव नहीं है। हम एक क्षण के लिए भी अकर्मण्य नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ कार्य करते ही रहते हैं, और यही विधान है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। तो शरीर को संचालित कर रखने के लिए, शरीर के सभी कार्यों को सुदृढ़ रखने के लिए ईश्वर प्रदत्त जो हमारे पास शक्ति है उसको हम सक्रिय करें कर्म के माध्यम से। कहते हैं जितना हम कष्ट उठाते हैं शारीरिक रूप से, उतनी क्षमता शरीर की बढ़ती है। और योग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम शरीर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आइए शांति पाठ करने से पूर्व संकल्प लेते हैं। हमारी भारतीय परंपरा पर विश्वास रखेंगे, हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति पर अटूट विश्वास रखेंगे। अंग्रेजी दवाई, एलोपैथिक मेडिसिन के प्रति हमारा रुझान होने से भी पूर्व एक बार अपने भारतीय चिकित्सा पद्धति योग, आयुर्वेद के प्रति विश्वास रखकर पूर्ण समर्पण के भाव से चिकित्सा शुरू करेंगे, उसे समय देंगे, उस पर विश्वास रखेंगे। कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। The unperturbed faith is essential for any therapy to do its work. So, on today's day, let us make an oath. Let us give a resolution to our own self that yes, I will be having a complete, unperturbed surrenderness, faith towards yoga, Ayurveda, and I will do it at my best capacity with full attention for its effect to be visible in my body, to get visible in my body. With this, I would want you to take a deep breath in and let us conclude with the Shanti part. कहा गया है कि जब हम अपने साथ साथ अपने स्वजनों के हित के लिए कार्य करते हैं तो अपना भला तो होता ही है, अपने साथ साथ अपने सभोताल में भी बदलाव, अच्छा बदलाव महसूस होता है। जिस प्रकार से कहा गया है चैरिटी बिगिंस एट होम, उसी प्रकार से हेल्थ बिगिंस एट होम एंड आवर हेल्थ should be our first priority, because when there's health we can certainly achieve any amount of wealth. शरीर जान है तो जहान है। तो आइए शांति पाठ के दरमियान अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पियर्स, कोलीग्स के स्वास्थ्य की भी सदिच्छा जाहिर करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम कृष्णार्पणमस्तु। ओम
सर्वेभ्यो नमः. Allowing each of your palms to be rubbed over each other. दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें, अच्छे से घर्षण करें, so your static energy that is developed feels the warmth within the palms and place them over the eyes. आंखों पर हल्का स्पर्श कराने के बाद आगे झुके हथेलियों को जमीन पर रखे, धरती माँ को प्रणाम करें, झुके. Let your head touch to the ground. And then slowly you may open your eyes. With warm regards, I express my deepest gratitude for joining along in the early morning practice. Thank you so much. Before we conclude, हमारा जय घोष मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, अनम्यूट हो जाइएगा. बोलो भारत माता की जय. ओके. तो भारत वंदे माता वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम. यस बिल्कुल. तो हम प्रयास करेंगे कि भारत माँ के अच्छे सपूत बने, और अच्छे सपूत बनने के लिए सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है. तो आइए हम स्वस्थ बनते हैं, स्व में स्थित होते हैं, ताकि हमारा स्वास्थ्य अपने साथ साथ अपने आसपास को भी इन्फ्लुएंस करे. Thank you for joining along. I wish you all a beautiful day ahead. For any queries, if you have, we may take it along. Okay? Thank you. Otherwise, Thank you so much. Thank Thank you. you, ma'am. Thank you so much. Have a wonderful day. Thank you so much. Thank you. Om ma'am. oh, Thank you, ma'am. Thank you. thank you. Thank you. Everyone. Thank you. Thank you हाँ very हाँ हाँ. much. hold on. कल अनीति पॉट जरूरी है. तो यस, मैं बताती हूँ कि क्या क्या जरूरी है. बेसिकली पॉट यू कैन यूज अ प्लास्टिक वन और स्टील वन वुड आल्सो डू. तो क्योंकि हमारा पानी इतना गर्म तो होता नहीं कि प्लास्टिक को गला दे, राइट? सो इवन इफ यू हैव अ प्लास्टिक नेटी पॉट, दैट इज आल्सो ओके. स्टील वाला है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज प्लास्टिक की आल्सो. सेंधव नमक या फिर काला नमक, इन चक्करों में मत पड़ना. नॉर्मल नमक विल आल्सो बी कूल एनफ, गुड एनफ. ठीक है, सेंधव है तो ठीक है. बाकी इट्स हैज टू बी प्योर, मतलब एक प्रकार से आयोडाइज्ड नमक है, फिल्टर्ड नमक है तो ज्यादा बेहतर. क्योंकि अगर थोड़ा सा धूल मिट्टी से बना हुआ वो नमक आपके पास आया है, then it can cause issues with the cloggings. So it is make sure that you have a clear one. कितना डालना है वो मैं बता दूंगी क्लास में. ओके, चाहो तो अभी बता देती हूँ. इतना कि आपकी आंखों का जो टेस्ट होता है, आंखों की आंसुओं का जो टेस्ट होता है ना, बस उतना. एक मिनट, आवाज आ रही है, मैं म्यूट करती हूँ. होल्ड ऑन, म्यूट. यस. सो तो मान लीजिए अगर 200 ml पानी है तो 200 ml में आप हाफ चम्मच डाल के देखना, क्योंकि नमक के भी इंटेंसिटी डिफर करती है ना. हर किसी का शुद्ध नमक अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ब्रांड का हो सकता है. तो एक बार टेस्ट कर लीजिएगा. आपने कभी आंसुओं को टेस्ट किया होगा, राइट? उस प्रकार का खारापन होना चाहिए. एंड गर्माहट ऐसी हो कि बॉडी टेम्परेचर जितना, तो अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस जैसे हमारा होता है ना, तो सहन करें. अपनी जो नासिक मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप. तो जितना आपका हथेली आराम से सहन कर ले, उस प्रकार से यू कैन उतना अमाउंट, उतना इंटेंसिटी का पानी गर्म होना चाहिए. सो यू कैन कंसिडर लाइक अ ल्यूकवार्म वाटर. सेकेंड पॉइंट, हमारी नासिका में देयर इज म्यूकस लाइनिंग, राइट? तो ये म्यूकस लाइनिंग को हम क्लीन कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई टू बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर वी आर यूजिंग द नमक. अगर हम बिना नमक का नॉर्मल पानी यूज करेंगे ना तो जलने लगेगा. हमारी जो नाड़ियां है ना वो जलने लगे. जलने माने यू विल फील दैट डिफरेंट फीलिंग. क्यों? बिकॉज हमारा अंदर का जो एक ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बैलेंस करने के लिए वी हैव टू यूज सम अमाउंट ऑफ नमक. ओके,
ताकि हमारा बॉडी एक्सेप्ट करे उस पानी को, नमक वाले पानी को एक्सेप्ट करे, whatever we input inside, because it's a foreign element. हमारा शरीर ऐसा यूज टू थोड़ी ना है कि हम नाक में से पानी को डाल के the nose will be very happy for it, है ना? So there will be some revolt being put by the body's nose in order to make sure that it is feeling happy within. So we are doing this all procedure. ठीक है? तो और कोई क्वेश्चन है तो मैं लेती हूँ. घी यूज करना है नहीं, ऐसा कुछ नहीं. यू मे यूज इट टू पुट इट बिफोर यू गो टू बेड. बहुत अच्छी बात है. अगर आप नाक में सोने से पहले घृत डालें, या फिर यू कैन इवन यूज बादाम रोगन, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है. लेट मी ऑल्सो शो दैट एज वेल. तो आप चाहे तो बादाम रोगन यूज कर सकते हैं. ओके, बादाम रोगन नाक में डाल सकते. 2-2 बूंदे काफी रहे. ठीक है. बादाम रोगन का हम यूज करेंगे आफ्टर जल नीति. मतलब जैसे हमारे जल नीति के 4 सेशंस हो गए ना, उसके दरमियान, उसके बाद आपकी नाक जो खुलेगी ना, सो आफ्टर दैट आई विल मेक यू टू यूज दिस ऑन द एवरीडे बेसिस, क्योंकि तब हमारा जो नर्व्स है वो और अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे वट एवर वी पुट इनसाइड. ठीक है. तो कल, मतलब आज के लिए ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, ना डालो आपकी मर्जी, बट कल से मैं कहूंगी डेफिनेटली यू कैन यूज. और आफ्टर 4 सेशंस इट विल बी मोर इजीली readily required. Okay. Any more queries? Let me take that point. Ma'am, can you say this? Where do we get the neti pot, ma'am? ओके, सो नीति पॉट आपको मिल जाएगा स्टील के शॉप में. आप स्टील का अगर लेना चाहो तो, या फिर आप कहाँ पे रहते हो? I'm from Mumbai. मुंबई में आपको मुंबई में अगर योगा के शॉप्स है ना, मतलब योगा टूल्स मिलने वाले जो अगर है, आई थिंक यू शुड बी गेटिंग इट. तो वहां पे आपको नीति पॉट पक्का मिलेगा. किसी फार्मेसी में भी होता है. सो आप चाहो तो वहां पे चेक कर सकते हो, नहीं तो स्टील शॉप में तो आपको मिलना चाहिए जल नीति पॉट. नाउ इट इज वेरी रीडली अवेलेबल. Okay. और अगर ये 3 ऑप्शंस भी ना हो तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते Okay. हो. 4-5 Another, दिन में. another question is, I'm already going through a cold process just now. My nose is blocked. So I was not able to breathe properly from my left nostril. My right nostril was constant, हम्म. was clear, but my left was not clear. So when we are doing neti, I may not be able to go through it, because previously many years back I had tried it, but it was blocked and I was not able to pass through. ओके ओके. हाँ. तो बेस्ट अभी क्या कर सकते हो कि एक मिनट, जस्ट लेट मी डू द एडजस्टमेंट ऑफ माय बैच की. ये 1 मिनट. यस. ओके. सो आपका जो भी नाक बंद है ना, जैसे आपने कहा बाई नासिका आपकी बंद है, Yes. यूज अ कॉटन इन योर राइट वन. आपके Opposite. दाहिने कान में Opposite, right? Opposite. प्रैक्टिस के दरमियान अपोजिट में डालना. बाकी सोने से पहले थोड़ा सा गुनगुना सरसों का तेल से आप छाती की मसाज करें, मालिश करें. हाँ. सो द इंटरनल नर्व्स विल गेट एक्टिवेटेड, और जो भी क्लॉगिंग्स है आपकी वो खुल जाएंगी. Okay. ओके. एंड थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू इज, जो काली मिर्च होती है ना, उसको आप चबाना. Okay. इतना अच्छे से चबाना कि वो आपको नाक को भी खोल दे. मतलब इट्स लिटरली वर्क्स. यू Okay. कैन यूज, उसकी लुगदी बनानी है, चबा चबा के यू विल फाइंड दैट द नोज विल आल्सो गेट क्लियर. So we जो take भी one at a time. Black pepper. One. हाँ, तो 1 से 2 एक से- 1 या 2 चलेगा. So during the day we do this process once or twice, ma'am? once Once only. Okay. ज्यादा. I'll do that because I have quite frequent allergy. एंड सो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना नीति का भी, तो उसके आपकी एलर्जी भी आगे जाके आपको नहीं होगी. जैसे कभी कभार सीजनल चेंजेस के कारण टेंडेंसी हमारी हो जाती है, वी फॉल प्रे टू कफ कोल्ड वेरी ऑफन, राइट. तो वो आगे जाके नहीं होगा. अभी अगर आपको है फिलहाल, तो ये 3 प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. I will do it. बाय
हाँ I'll do it during the day. And another issue was that regularly I'm not able to do Nadi Shuddhi on regular basis because of the blockage. So when I do Bhastrika, my nose becomes clear. Then I'm able to do Nadi Shuddhi. That is what I noticed through experience. हाँ, that is because आप वो फोर्स दे रहे हो, Yes, फोर्स, yes, yes, हाँ, yes, तो वो खुल जा yes, yes. Okay, thank you, ma'am. थैंक यू. And I have one more question. I had a fall, so my right arm, I'm not able to take the weight. So when you were making us do that leg exercise, standing on your soles, so I was not able to do it on one side. So I mean, I have completed 6 to 8 weeks, but little yet pain is there through which I'm not able to take my body weight because I'm heavy. So any exercise you would recommend for my this Yes. to become more strong, my wrist हाँ, मणिबंध कर सकते हो आप, जैसे हमने शुरू में किया rotation? था, है ना. और हाँ, इस मणिबंध में ध्यान इस जगह पर, कलाई पर लाना. Bring your attention towards your wrist Wrist. and do it with awareness. Okay. ध्यान पूर्वक करना. तो Okay. जैसे कहते हैं ना कि हम ध्यान के माध्यम से उस जगह पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करा सकते हैं. So the main funda or the main idea is improve the blood circulation over that area, and you'll find the part in responding more better. Okay, Okay, ma'am. Thank you. this is one part. Secondly, what you can do is allow oiling. थोड़ा सा आप चाहो तो उस जगह पर कोकोनट ऑयल का मसाज नहीं कहूंगी मैं, बट हाँ, आप एक प्रकार से उस जगह को नरिश करना. प्रेस नहीं करना, प्रेशराइज मत करना, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारी नर्व्स होती है ना. तो प्रेशराइज मत करना, बट जैसे होता है ना कि आप प्रेम से उस जगह पर नरिशमेंट करना, तो इट विल रिस्पॉन्ड मोर बेटर. Okay, ma'am. Thank you. दैट्स ऑल. एंड हाँ, डेफिनेटली आप जैसे अगर थोड़ी बहुत इंजरी होती है तो हमारा शरीर डरता है कोई भी फिर से वो अटेम्प्ट करने से पहले. तो आई विल डेफिनेटली नॉट रेकमेंड कि आप उसको प्रेशराइज करें बाय पुटिंग वेट ऑफ योर बॉडी. धीरे धीरे करना. चाहो तो 2 हाथों से कर सकते हो. मैंने अभी एक हाथ से बताया था आपको, एक हाथ से प्रैक्टिस करने के लिए, तो 2 हाथों से शुरू कर सकते हैं. ट्राई डिस्ट्रीब्यूटिंग योर वेट ऑन योर फीट. मतलब भले हम अपने हाथ को यूज कर रहे हैं टू वे या बॉडी वेट, बट हम ध्यान के माध्यम से अपने वेट को पैर पर शिफ्ट कर सकते हैं. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. मतलब जो बॉडी वेट आप अपनी कलाई पर, नेचुरली हमारी जो टेंडेंसी होती है, वो आप अपनी पंजों पर शिफ्ट कर सकते हैं. यस, ठीक है. Because I was not able to lift it up. हाँ I did हाँ, only on वो one side then. I did it one-sided only. yes, Thank that's you. why I told ना कि our body knows us. तो अगर हमारा शरीर नहीं कर रहा है अलाउ, that means our body needs some extra time. या तो मैं आपको मतलब जैसे if there's some other instructor and to hold and to get it done for you, then that will put pressure on your body. So do it at your do it Gradually. at your pace, and you'll certainly find progressing process happening. Okay. Thank you. Thank you. And I'll take another question. Now somebody who wanted it, they had raised their hand. Yes. Some Samsung or Yes. something. हाँ, तो एक क्वेश्चन था कि कल अगर पॉट ना मिले तो क्या करें. मतलब आज अगर ना मिले या फिर कल ना ले आ पाए तो क्या करें. तो पहला तो मेरी प्रायोरिटी ये है कि आप एक बार बाहर, घर के बाहर जाके स्टील शॉप में पूछ लीजिएगा. चांसेस बहुत हाई है कि आपको मिल जाएगा. सेकेंडली, आप चाहे तो फिर ऑर्डर कर दीजिए. यूल गेट इट इन 4 days, नो प्रॉब्लम. अगर आपको कल नहीं ला पाते, आप देख लीजिएगा, आप देख के समझ लीजिएगा till then tomorrow, but we are going to do it. Okay. But the neti pot is this huge, ma'am. इतना बड़ा आता है neti pot के size different sizes में आता है. डिफरेंट साइजेस में आता है. आप अपना चूज कर सकते हो. 200 ml वाला एक टाइम में काफी रहता है. 200 ml. Okay. Because I felt this was quite huge. बड़ा था. पता नहीं, थोड़ा first सा time देखा है ना इसके लिए.